بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہ محمود قریشی صاحب, جناب فرحت اللہ بابر صاحب, جناب مشاہد حسین صاحب, جناب عطر کاظمی صاحب, السلام علیکم. میں اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اس ویبینار میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ اس مذاکرے میں شامل ہونے پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سول ملٹری تعلقات کے بارے میں بات کرنے کا یہ اہم وقت ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ملک کی سیاست میں ایک بحرانی صورتحال دیکھ رہے ہیں. موجودہ صورتحال کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بڑا سبب سول ملٹری تعلقات ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ماضی کی باز گشت ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 3 بڑی جماعتیں سول ملٹری تعلقات میں انتہائی واضح عدم توازن کا شکار رہی ہیں, لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاذ و نادر ہی مل کر کام کیا ہے. جب کوئی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو ہم ایک صفحے کا منتر سنتے ہیں, لیکن جب وہی جماعت مقتدر قوتوں کی حمایت کھو بیٹھتی ہے تو وہ سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت کو بیان کرنے کے لیے نئی لغت تیار کرتی ہے, مگر ساتھ ہی کھوئے ہوئے سرپرستوں کو واپس جیتنے کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہے. یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس میں یہ ملک سب سے زیادہ خسارے میں نظر آتا ہے. اسی تناظر میں آج کے مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ آیا اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا کوئی امکان ہے. میں ایک نتیجہ خیز بحث کا منتظر ہوں اور ایک بار پھر آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو. جی پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کوشش کریں گے کہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں اور چیزوں کو تھوڑا سا بریف رکھیں گے, اور ود ان ہاف این آور 40 منٹس کوشش ہوگی کہ اس کو ریپ اپ کریں. آبویسلی ٹاپک بڑا وسیع ہے, اس میں آپ حتمی نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے اتنے جلدی, لیکن جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سارے ایسے گیسٹ ہیں کہ وہ اپنی ان پٹ دیں گے اور بڑی ویلیوبل ان پٹ ہوگی ان کی. اور آپ سیکیورٹی پاکستان کے مسائل ہیں, اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری امبیلنس ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ ماضی اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان جب وار شروع ہوئی, اس کے بعد 9/11 آیا, بار بار ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا رہا. پیچھے چلے جائیں سیٹو سینٹو جیسے ملٹری اتحاد, ان میں بھی پاکستان کا کردار ہے. تو ایک لمبی تاریخ ہے جس کی وجہ سے لگتا ایسے ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں امبیلنس ہے. لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں سب سے پہلے تمام جتنے بھی ہمارے معزز جہاں پہ شرکا ہیں ان سے باری باری ایک ہی کوشچن پوچھوں کہ ان کی نظر میں بنیادی وجہ کیا ہے اس امبیلنس کی, یا سول ملٹری تعلقات میں جو خرابی آتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب سے میں شروع کر سکوں. دیکھیے پہلے تو شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت آپ نے چنا ہے بڑا موضوع ہے. موضوع اس لیے ہے کہ آج
तीनों मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी न किसी हद तक मुतासिर हो चुकी हैं, तजर्बा कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को अपना तजर्बा है, नून लीग को अपना तजर्बा है, और तहरीक इंसाफ जो पहली मर्तबा इक़्तिदार में आई है उनको अपने तजर्बात से फायदा उठाना होगा। अब मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि क्या सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस रहा है, क्या उसे दुरुस्त होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? सोचने की बात यह है कि हमारे यहाँ ये एक कबाहत रही है, और मैं अपना तजर्बा आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं 2 दफा इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं। जब मैं पिछली मर्तबा वजीर खारजा था और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी गुफ्तगू होती थी, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता था वो मुझे कहते थे सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट है, और उस डिस्कनेक्ट को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। चुनांचे इस मर्तबा मेरी हद्दुल वसा कोशिश थी इन द सेकंड इनिंग्स एज फॉरेन मिनिस्टर कि नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके चला जाए, उनका इनपुट लिया जाए, और उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। CIA अपना इनपुट देती है, MI6 अपना इनपुट देती है, सब नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पर, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के हों, फॉरेन पॉलिसी के हों, इनपुट लेना अच्छी बात है, जरूरी है। फैसला हुकूमत वक्त को करना चाहिए, फैसले का अख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ये मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। अब तजर्बा क्या कहता है? तजर्बा कहता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोनों ने माजी के तल्ख तजर्बों को सामने रखते हुए एक मिसाके जमहूरियत पर इत्तफाक किया। अब देखना यह है मिसाके जमहूरियत की स्पिरिट को क्या इन दोनों जमातों ने फॉलो किया या नहीं किया। मेरी राय में, क्योंकि मेरा वहां भी वक्त गुजरा है पीपल्स पार्टी में, मैं दयानतदारी से कहता हूं बहुत अच्छे लोग हैं वहां, बड़े बड़े मंझे हुए लोग हैं, और मैं बरमला कहूंगा फरतुल्लाह बाबर इज वन ऑफ देम, और भी बहुत से नाम हैं जो हमेशा असूल की बात करते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मिजाके जमहूरियत पर दोनों इन जमातों ने, तजर्बाकार जमातों ने उसको बाईपास किया है। ये हॉबनॉब इन्होंने किया है। आज जो इक्तदार में हैं, मुझे ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी अमल है, हमें इसको एतराफ करना होगा, और जब तक हम हकायक तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे चलिए। अब सवाल ये है कि इनपुट बहुत जरूरी है, और मिसाल के तौर पर अभी जो अफगानिस्तान के मामला चल रहे थे, पुलवामा का वाकया हुआ, हिंदुस्तान ने हम पर चढ़ाई कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपना तजर्बा बता सकता हूं। पल पल मेरा, हमारे जो ISI है, हमारे जो चीफ हैं, उनसे राब्ता था और उनसे इनपुट, और वो अच्छा इनपुट देते थे। सच्ची बात है, वो अच्छा इनपुट देते थे, और फॉरेन ऑफिस के पास बेपनाह अपनी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मौजूद है। मैंने चुनाचे कोशिश की कि इन दोनों इदारों के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का फायदा उठाते हुए मैंने एक फोरम क्रिएट किया जिसमें एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज, और कम से कम 7 उसमें थे, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मुसलसल ऑन की नेशनल इश्यूज, कश्मीर के इशू पर, चाइना के साथ ताल्लुकात पर, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर, यूरोपियन यूनियन के साथ इंगेजमेंट पर, अफगानिस्तान के मामलात पर, वो मुझे इनपुट देते रहे। इसके साथ साथ मैंने एक फॉरेन मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई, और वो भी उसमें इंटेलिजेंशिया के लोग भी शामिल किए। क्या हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और उसका फायदा हुआ। अब आप कह रहे हैं अच्छा शाह साहब, ये जो क्या होना चाहिए, मैं अभी बात समेट रहा हूं, मुझे बात समेटने दीजिए प्लीज, अगर इजाजत दे दे। थैंक यू। जी, इसके ऊपर हम आगे रोल क्या होना चाहिए? देखिए शाह साहब, रोल जो है वो आइन ने डिफाइन कर दिया है। आइन के रोल के अंदर अगर सब इदारे काम करें तो पेचीदगियां कम होंगी। जब भी हम आइन से तजावुज करेंगे हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। फौज हमारी नेशनल फौज है, एक प्रोफेशनल फौज है, उसको सियासत में हमें नहीं घसीटना चाहिए। अगर हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क, हमें फौज की जरूरत है, हमारे फौज की हमारी कीमती असासा है, लेकिन उसको सियासी रोल अदा नहीं करना चाहिए। लेट द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले देयर रोल। अब पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज की 2-3 कमजोरियां मैं आपको बता देता हूं मेरे तजर्बे के मुताबिक। नंबर 1, डेमोक्रेसी विद इन नहीं है, न नून में है
ना पीपल्स पार्टी में मैं मेरी बात अगर बुरा ना मनाए, वो भी बन जाते हैं वसीयत पर, वो भी बन जाते हैं विरासत पर। अब उसके अलावा उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, थिंक टैंक्स नहीं है, और नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने थिंक टैंक्स नहीं है। तो क्या होता है, उनकी रिलायंस बढ़ जाती है नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस पर, फौज पर, और उनके इनपुट के सहारे पर वो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना इनपुट होता नहीं है, तो वो जो रिलायंस है, वो जो डिपेंडेंस है, वो उनको और ताबे कर देती है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम असर नौ, देखिए तहरीक इंसाफ को पहला तजर्बा हुआ है, इमरान खान पहली मर्तबा इस पोजीशन में आए हैं और उनके अपने तजर्बात हैं, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को अपने तजर्बात हैं। अब मेरी राय में इन तीनों जमातों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुदब्बराना किरदार अदा करें, इस मुल्क की जरूरियात और चैलेंजेस को समझें और देखें माजी में हमसे क्या गलतियां हुई और मुस्तकबिल की इस्लाह हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे को कोसते रहे तो वो तो मेरे पास भी मटेरियल है, शाह साहब के पास बहुत होगा, फरतुल्लाह बाबर के पास बहुत होगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। देखिए पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी टैंक कर रही है, वी माइट डिफॉल्ट, हमारे इंस्टीट्यूट टेक कर गए हैं। अब हमें जरूरत है कि हमें नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है कि किस इदारे ने, जुडिशरी ने, मीडिया ने। अब देखिए इमरान रियाज को कल पकड़ लिया, क्या गुनाह है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर लिया, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये फैशिज्म है या डेमोक्रेसी है? ये आज शहबाज शरीफ को सोचना होगा। मैं आता हूं शाह साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं मुशाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं। ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सारे वो नुक्ते भी उठा दिए जो आगे जाके हमने डिस्कस करने थे। बुनियादी नुक्ता वही है कि आपने अपने दौर में इस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को कम करने के लिए नून लीग ने क्या किया, और जिस तरह शाह साहब ने कहा कि एक डिस्कनेक्ट नजर आया उनको इंस्टीट्यूशंस के बीच में, क्या वो डिस्कनेक्ट दूर कर आपको भी नजर आया, और उसको दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी और फरतुल्लाह बाबर साहब को भी। मैं समझता हूँ कि एक क्रेडिट हमें जरूर जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम कौमी सलामती का फैसला कि न्यूक्लियर ताकत हमने बनना है, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने धमाका करना है, वो फैसला एक सिविलियन जमहूरी हुकूमत ने किया था। किसी प्रेशर तले नहीं, कोई फौज का प्रेशर नहीं था, कोई एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं था। मैं उस वक्त वजीर इत्तलात था, मैं आपका चीफ स्पोक्समैन था, और मुझे याद है कि सर्विस चीफ से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ये फैसला मियां साहब का फैसला है, हुकूमत का फैसला है, और हमने वो सबसे बड़ा फैसला नेशनल सिक्योरिटी का कर लिया था, इसलिए कि कौम हमारे साथ थी और हमने कंसेंसस किया था। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, सियासी कुव्वतें इकट्ठी हों, इट इज पॉसिबल। मैं आई जस्ट पिक अप द थ्रेड्स जहां मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने दो बातें की हैं, बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कहा कि हम सब जितनी जमातें हैं, हम सब में इनसे गलतियां हुई हैं इस सिलसिले में, और हमें अब आइंदा के लिए एक कंसेंसस की जरूरत है। बुनियादी मसला ये है कि अगर हम फौज का सहारा लेते हैं हुकूमत में आने का, और फौज के जरिए हुकूमत करते हैं और फौज के सहारे से करते हैं, तो फिर वो फैसला हमारे जाने में फौज फिर फैसला करेगी कि कब आप जाएं या रहें, कुंजी उनके हाथ है। सो बेसिक इशू क्या है? वी डू नॉट हैव रूल्स ऑफ द गेम अमंग्स द पॉलिटिकल फोर्सेस। जब हम फील करते हैं कि हमें फौज की जरूरत है तो हम फौज को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, जब फौज निकल जाते हैं तो फिर हम तनकीद भी करते हैं फौज की कि देखिए जी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट इशू ये है मेरे ख्याल में, रूल्स ऑफ द गेम अमंग्स पॉलिटिकल फोर्सेस, के फौज का रोल आइन में मुतय्यन है, उनको रहने दें, और वो हम सियासी तौर पर उनको मुलव्वस ना करें अपने हक के लिए, अपनी हुकूमत के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए। अगर करेंगे तो फिर इक़्तिदार से बाहर जाने का भी रास्ता फौज के जरिए होगा, क्योंकि हमारा अंदर आने का रास्ता वो है। नंबर वन। नंबर टू, मैं समझता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्कनेक्ट की जो बात की, इसका पॉइंट आउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। 14 जून 1948 को कायदे आज़म की स्पीच है
कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में, और उन्होंने क्या कहा था, ये स्पीच मेरे सामने है। उन्होंने कहा था कि ये ओथ जो है आर्मी ऑफिसर्स की, that they should be loyal to the constitution, ये फॉलो करें और कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें। ये इसका मतलब था कि ये इशू उस वक्त आना शुरू हो गया था, तो कम से कम आगाज तो ये करें ना कि जो जितने भी लोग हैं पीएमए में या स्टाफ कॉलेज में या नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, कायद आजम की 14 जून की स्पीच, आइन का मुतालिया जो 73 का आइन है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जरूर कंपल्सरी कर दें। और तीसरी बात मैं कहूंगा, बाबर साहब हमारे बड़े मोहतरम है कि आईएसआई का किरदार बड़ा तयन था क्लियरली आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1975 में मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आईएसआई को मैंडेट दे दिया कि आईएसआई पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है उनको मॉनिटर कर सकती हैं, गो के ग्राउंड दिए गए नेशनल सिक्योरिटी के। और भुट्टो साहब का एक ऑर्डर था, डायरेक्टिव था, जो 1975 में इजाजत देता है आईएसआई को दाखिली सियासत में मुलव्वस होने में, दाखिली सियासत पर वो अपना रोल अदा करने। तो वो एक जवाज और बुनियाद बन गया, गो कि उससे पहले भी इंटरफेरेंस होती रही और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करते रहे बाकी हुकूमतें भी, लेकिन वो लीगल कवर मिल गया। तो मेरा ये होगा रिक्वेस्ट और मेरा डिमांड होगी कि सारी सियासी जमातें अग्री कर जाएं, कंसेंसस हो जाए कि वो 1975 का भुट्टो साहब का जो डायरेक्टिव है आईएसआई को, वो विड्रॉ कर लिया जाए, वो ताकि कानूनी जवाब इस वक्त नहीं होना चाहिए। और आईएसआई का जो एक अच्छा रोल है, पॉजिटिव रोल है कौमी सलामती के हवाले से, जो उनका मैंडेट है वो उनको पूरा किया जाए। और दाखिली सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या फौज हो, उसमें हम ना उनको दावत दें ना उनको मुलव्वस होने की इजाजत दें। तो अगर आगाज ये हो जाएगा तो काफी कबाहतें दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं फरहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ आता हूं, लेकिन जहां तक सर मैं आता हूं, शाह साहब मैं आपके पास वापस टू रिस्पॉन्ड टू शाह साहब। जी जी, मैं आई विल कम बैक टू यू सर। इनके कमेंट सुन ले मखदूम साहब के क्या कहते हैं। चले बड़ा सिंपल कमेंट, वन लाइनर, because फरहतुल्लाह बाबर could add on to it, he can add on to it। देखिए, शाह साहब ने एक हिस्टोरिक बात की है which is factually correct। अब देखना ये है कि क्या हमने उससे सीखा या नहीं सीखा। मैं उसको ऐड ऑन करता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने एक और गलती कर दी, शहबाज शरीफ साहब ने। वो क्या, उन्होंने एक नया रोल दे दिया आईएसआई को और वो कहा है कि जितनी सिविल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होगी वो उसको पहले वेट करेंगे। नाउ दिस इज नॉट देयर रोल, और ये जो रोल एडिशनल आपने दिया है, तो आपने सिविलियन मैटर्स में उनको मजीद मदाखलत का अख्तियार दिया है। मेरी राय में इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेसी में बड़ी इससे डिमोरलाइजेशन हुई है और एक स्केयर फैला हुआ है, एक खौफ फैला हुआ है। ठीक, एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं फरहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ लेके जा रहा था कि ऑब्वियसली ये इत्तेहादी भी हैं इस वक्त, और जहाँ पे आप सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात करते हैं, मौजूदा हुकूमत के इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे सवालात भी उठे, कुछ पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने बातें की। लेकिन फरहतुल्लाह बाबर साहब, आपने सुना दोनों जो मौजूद शख्सियात हैं उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बताई, कुछ हद तक वो एक दूसरे के साथ एग्री भी करते हैं, लेकिन आपकी नज़र में बुनियादी वजह क्या है? इसलिए कि आपके दौर में आपने एक दफ़ा आईएसआई को वजारत दाखिला के अंदर लाने की कोशिश भी की और मिसाके जमहूरियत का भी जिक्र हुआ, लेकिन 2008 में किया था ये। जी जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन 24 घंटे में विड्रॉ हो गया था। एग्जैक्टली। तो फिर मसला क्या है हमारा? क्या सिक्योरिटी जो अपराटस है या जो हमारे सिक्योरिटी मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि हम इनके सिंपल सोल्यूशन इस तरह नहीं निकाल सकते कि एक नोटिफिकेशन करें और आईएसआई को वजारत दाखिला के अंडर कर दें? तो आप सर अगर इस पे थोड़ा सा कमेंट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आईपीआई को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, और जिस तरह बुखारी शाह ने पहले कहा कि बड़ा अहम मौजू है, बड़ा टाइमली है, और शाह महमूद कुरैशी साहब और मुशाहिद साहब को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब की इस बात से और मुशाहिद हुसैन साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। ये गलत हुआ है। मैं इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हूँ, और मौजूदा हुकूमत ने अगर आईएसआई को जो ये इख्तियार दिया है कि सिविल मुलाजिमीन का, मैंने इस पर अपना बयान भी दिया है, ये सिरे से गलत हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने चंद एक चीज़ें रखना चाहता हूँ। बिलाशुबा सियासी जमातों का इसमें कसूर है। सियासी जमातें जो हैं जब अपोजिशन में होती हैं एक बात करती हैं, जब गवर्नमेंट में होती हैं दूसरी बात करती हैं।
لیکن یہ جو میثاق جمہوریت ہے جس کا شاہ احمد قریشی صاحب نے ذکر کیا، شاہ اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو چیپٹر ہے سول ملٹری ریلیشنز کا، اس میں کئی چیزوں پر عمل درآمد ہوا، کچھ چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. مثلا اس پر عمل درآمد ہوا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی پرائم منسٹر کے پارلیمان کے انڈر ہوگی. مثلا اس پر عمل درآمد ہوا کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے اب ون لائنر نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہوا، لیکن اور بڑی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو میں سیاسی جماعتوں کو بشمول اپنی جماعت کو ان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی وجہ کیا ہے. اپارٹ فرام the reason of the political parties کہ وہ weak footed ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر میں نے مان دیا. بات یہ ہے جی نمبر ایک کہ ہماری افواج نے، آرمی نے آئین کو تسلیم نہیں کیا. جس طرح مشاہد حسین صاحب نے 14 جون 1948 کی قائد اعظم کی تقریر سے بعد سے لے کر تمام the army, the generals have not accepted the constitution and the rule by the people of Pakistan. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے ملک میں the military جو ہے ہمارے there has been a constant desire on their part کہ civil military equation کو it should be rewritten on the terms of the military alone. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں جنرل تنویر نقوی کے ذریعے جنرل مشرف نے ڈور ڈالا اور انہوں نے ایک فارمولہ دیا، تو خود اس وقت جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ یہ جو فارمولہ دیا گیا ہے اٹس the manifestation of the desire of the military to rewrite the civil military equation on the terms of the military alone. تو یہ ہمارا ایک ایشو رہا ہے. نمبر 3 یہ رہا ہے کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ اکانومی اور پالیٹکس کے کمانڈنگ ہائٹس پر بیٹھ گئی ہے. They have acquired, they have tasted political and economic power, and power is always encroaching. The more you have it, the more you encroach upon the domain of others and acquire more power, تاکہ جو پاور آپ کی ہے آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. تو انہوں نے ہمارے افواج پاکستان نے، آپ دیکھیے کمانڈنگ اکنامک ہائٹس. The FWO has become the country's largest contractor. The Fauji Foundation has become the country's largest conglomerate of business and commercial enterprises. And DHA has become the country's largest real estate enterprise. So commanding heights of the economy. پھر ان کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی پر بیٹھنے کے لیے اور ان کے اوپر رہنے کے لیے there is a tendency to acquire political power. And then this is how keeps on expanding. So it is a vicious circle. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ I agree with مشاہد صاحب and قریشی صاحب کہ ہاں ڈائلاگ تو ہونا چاہیے اور سب کو مل کے کرنا چاہیے، لیکن صرف اس پہ بھی بات نہیں ہوگی. میرا جو میری رائے ہے وہ یہ ہے a two-track فارمولا. نمبر 1 آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتیں آپس میں ایکا کرنے کے بعد، بات کرنے کے بعد، چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. ان کے ساتھ بھی لیٹ اس پٹ اکراس دا ٹیبل اور گریوینسز اینڈ دے پٹ اکراس دا ٹیبل دیئر گریوینسز. لیکن صرف اس پر نہیں، ان دا پارلیمنٹ the political parties collectively should also put pressure. And how to put the pressure? For example, میں قریشی صاحب سے بھی کہوں گا، مشاہد صاحب سے بھی کہوں گا، اپنی پارٹی سے بھی کہوں گا، اگر ہم پارلیمان کے اندر موشنز، ریزولوشنز اور سوالات اٹھائیں، اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ جی آرمی چیف کو 90 ایکڑ زمین کیسے ملی، اس پر بحث کر دیں. اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ FWO کو بغیر بڈس کے ٹھیکے کیسے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں، آپ ان سوال، ہمارے پارلیمان کو ان چیزوں پر یہ سوالات اٹھانے چاہیے اور اس کا پریشر پڑے گا. اور پریشر ڈالنے کے بعد بات چیت بھی کریں. تو ڈوئل ٹریک پالیسی، ریز the issues in the parliament to put pressure and also keep on negotiations, dialogue with the military establishment. That is the way forward. And the ISI must be brought under legislation, جس کے لیے سینٹ نے 2015 میں کمیٹی آف دا ہول نے باقاعدہ بل بنا کے
भेजा है गवर्नमेंट को और कहा है कि आप 2 महीने के अंदर हमें बता दें कि आप इस कानून को पास करना चाहते हैं या आप इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं. So bring ISI under the legislation. Otherwise, ISI, the mandate of which is not determined, ये लापता अफराद का सिलसिला चलता रहेगा. आपको इनको कानून के तहत लाना होगा. मेरा ठीक है। इसमें अच्छा, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर. काइंडली मुझे जस्ट अलाउ मी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ. आप इसमें ऐड भी कीजिएगा इसलिए कि आपने जाना भी है, तो मैं आपके पास ही आ रहा हूँ. पर जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने कमेंट किया, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मिलिट्री के हवाले से उन्होंने एक चार्ज शीट रखी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो पार्टीज हैं, क्या वो इंस्टीट्यूशंस बन सकी? ये क्या पार्टीज के पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि जब फरतुल्लाह बाबर साहब जैसे लोग या रजा रुबानी जैसे लोग जो हैं वो बिलावल साहब के पीछे खड़े हो जाएं और वो कहें कि जनरल्स वांट टू हैंग ऑन टू पावर? सो फिर मतलब कि फिर अगर इस तरह हमारा ये क्या पार्टियों में वो तसलसल रहा? आपकी जमात में भी इसी तरह मरियम बीबी जो है वो एकदम से आ गई, बाकी जो लोग 40-40 साल से सियासत कर रहे हैं, तो ये हम वन साइडेड व्यू तो लेते हैं कि मिलिट्री एंड जनरल्स वांट टू हैंग ऑन टू पावर, पर जो सियासी जर्नल हैं वो तो इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि वो तो आप लोगों को भी इजाजत नहीं देते. फरतुल्लाह बाबर साहब यहाँ पे तो कह रहे हैं, ये क्या जरदारी साहब के सामने बैठ के पार्लियामेंट में उन्हें कहे ना कि जरदारी साहब क्यों बिलावल लीड करेगा, हमें करे रजा रुबानी लीड, फिर मैं देखता हूं क्यों नहीं चेंज होती पूरे मुल्क में. तो सर ऐड ऑन टू दिस एज वेल, यू हैव नॉट मेड पॉलिटिकल पार्टीज इन, जो उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया इंस्टीट्यूशंस में, बट यू वांट मिलिट्री टू, पर वो जो है वो एकदम से ठीक हो जाए. ये बात आपकी सही है. वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर नहीं है उस तरह, जिसमें डिबेट हो, डिस्कशन हो और डिसेंट हो, इख्तलाफ राय हो. और हमारे यहाँ बल्कि एक बात तो 18th अमेंडमेंट में खुद डाली गई थी इन्हीं के दौर में, जिसमें कहा गया था कि जो हर्फ आखिर होगा, जो पार्टी लीडर फैसला करेगा, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, वो हर एक को निकाल सकता है किसी भी ग्राउंड्स पर. ये फैसला हुआ था, ये इट्स पार्ट ऑफ द 18th अमेंडमेंट जो इनके दौर में पास हुई थी. और दूसरा एक और एग्जांपल दूं मैं, आपने खुद भी देखा सियासीदानों में हिम्मत होनी चाहिए. जनरल मुशर्रफ का दौर था, मैं चेयरमैन था डिफेंस कमेटी का, जनरल मुशर्रफ बावर्दी जनरल थे. मुझे कहा गया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल हामिद जावेद, कि जी फरतुल्लाह बाबर साहब आपकी कमेटी के मेंबर हैं, ये तनकीद बड़ी करते हैं फौज की, इनको निकाल दिया जाए डिफेंस कमेटी से. मैं कहा ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इलीगल और मैं नहीं करूंगा, आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये रूल्स में है कि जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं. हमने रेजिस्ट किया प्रेशर, अल्टीमेटली क्या हुआ, फौज ने प्रेशर डाला इनकी लीडरशिप पर, उन्होंने इनको खुद चेंज कर दिया, इनको रिप्लेस कर दिया विद सलीम मांडवी वाला साहब. तो देखें जी, क्वेश्चन है कि उसमें प्रेशर में आ जाती है. फौज के हवाले से ये डायलॉग की बात करते, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं. आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पहले सियासी जमातें आपस में फैसला करें, चाहे पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो और भी कोई जमात हो, कि आपस में आर वी वेरी क्लियर दैट द रोड टू इस्लामाबाद लाइज नॉट थ्रू रावलपिंडी और नॉट थ्रू वॉशिंगटन और नॉट थ्रू लंदन, बट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बैलेट बॉक्स. अगर वो फैसला आप कर लें और उसमें आपकी हिम्मत भी हो कि उस फैसले पर कायम रहें और इलेक्शन रिजल्ट्स को मान लें, तो कोई आईएसआई, कोई जर्नैल, कोई फौज वो नहीं करेगी. जब आप खुद उनको कहेंगे कि आपने आंख मार दी है, आपको टेलीफोन कॉल आ गया है, या मेरा खिलाफ जो मुखालिफ है उसको निकाल दो और मुझे इंस्टॉल कर दो, वंस दिस म्यूजिकल चेयर्स स्टॉप्स. और ये फैसला सियासी जमातों ने करना है. अगर सियासी जमातें फैसला कर सकती हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, वो फैसला अयूब खान ने नहीं किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था. और धमाका करना है, वो फैसला जनरल करामत ने नहीं किया था, वो मियां नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर ने किया था विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल. तो बस फिर आप कर लें. तो ये जो है ना, और हम जो है ना, एक और चीज है, वी यूज एक्सटेंशन ऑफ आर्मी चीफ्स एज अ वेपन ऑल्सो, कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी. मुझे याद है जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी गई इन्हीं के दौर में, तो आपको याद है यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अब हमारा टेन्योर पक्का हो गया है, वी विल कंप्लीट अ टेन्योर. तो मेरे ख्याल में वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स. पहले जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हम कहते हैं कि अवाम का सरचश्मा है ये आइन वगैरह, उसको फॉलो करें एंड वील टेक इट फॉरवर्ड. ऑन दिस नोट आई हैव टू लीव, क्योंकि मेरी एक और अपॉइंटमेंट है. थैंक यू वेरी मच. और मखदूम साहब, गुड लक टू यू. लास्ट टाइम आपकी अपनी पार्टी ने आपको लेट डाउन किया था,
آپ کو الیکشن ہروایا تھا ملتان میں. آئی ہوپ کہ اس دفعہ وہ نہیں کریں گے, کوئی اور لوگ کریں گے. آپ سورہ فلق پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے شر سے بچا لے. اینڈ گڈ لک ٹو یو سر ان یور الیکشن. Thank you. Thank you. Let the people decide whoever they want to vote for, whether it's your party or our party or anybody else. Good luck. Let's follow Thank some you. rules of the game. Thanks a Thank you, lot. sir. Thank you, sir. अच्छा, मखदूम साहब के हवाले से तो बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी, पर मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ कि वो पीपल्स पार्टी में वापस नहीं जा रहे हैं. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं. I know his father also. Yeah. I was library. He'll find out how to the very good luck. Thank you. अच्छा शाह साहब, मैं शाह आपके पास आपकी Can I respond to that? He has left, sir. वो चले गए हैं. तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ. हाँ, मैं उसके साथ ऐड कर दीजिएगा सर, पर मैं कुछ चीज ऐड करना चाहता हूँ. जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से यहाँ पे बात हुई, सर मियां साहब कहते रहे, माजी में पीपल्स पार्टी भी कहती रही. अब बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी समझ आ रही होंगी. आपने अपने द्वार में कहा कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा अच्छा बंदा है, इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बताया था. अब खान साहब दबे दबे लफ्जों में बहुत सारी चीजों के ऊपर आवाज उठाते भी हैं, लेकिन क्या आपने अपने दौर में सर वो सारी बातें की जो आइडियल बातें होनी चाहिए थी, जो सिविल हुकूमत का रोल होना चाहिए था? तो अभी तो आप शिकवा शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पहले 1 पेज को आप सेलिब्रेट करते रहें और ये कहते रहें कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ. प्लीज सर, इफ यू कुड. पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए, पीपल्स पार्टी में बहुत से दोस्त भी हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं. लेकिन बदकिस्मती से फरतुल्लाह बाबर जैसे लोग, रजा रब्बानी जैसे लोग, ये आगे आने के इम्कानात इनके महदूद हो जाते हैं. क्यों? कि लीडरशिप को चाहिए राजा परवेज अशरफ जैसे लोग और यूसुफ रजा गिलानी जैसे लोग, जो कहें दिन तो कहें दिन, वो कहें रात तो कहें रात. तो ये एक अलमिया है जिस अलमिया से मुख्तलिफ पार्टीज उसका शिकार हो जाती हैं. नंबर 1. नंबर 2, मुशाहिद साहब बात कर गए इंस्टीट्यूशंस. बिल्कुल सही है. इमरान खान साहब से मैंने मुतवातिर ये बात सुनी है कि देखिए, अगर हमारी पार्टी ने आगे बढ़ना है तो मेरी जो दरीना ख्वाहिश है कि मैं अपने होते हुए इस पार्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर जाऊं, इसको एक इंस्टीट्यूशन बना जाऊं. वो इसलिए कहते हैं, कहते हैं ना मेरा बाप ना मेरा, मैंने तो 26 साल धक्के खा के एक नीचे से पार्टी खड़ी की है और आज अल्लाह के फजल करम से वो एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी बन गई है. लाखों लोग उनके मजमे में आते हैं और अभी हालिया मिसाल रावलपिंडी इस्लामाबाद का इज्तिमा है. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज करना पार्टीज को बहुत जरूरी है. अगर हमने जिस फरतुल्लाह बाबर कर रहे हैं, अगर उस पर हमने आगे बढ़ना है तो इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टीज ही इस तरह कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते. जब डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशनल होगी, फैसले और होंगे. जब डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल के पास और फिर सिर्फ लीडरशिप के पास रह जाएंगे तो फैसले और होंगे. ये सीखना है. नंबर 2, मैं आपका हमें सीखना है. माजी को हम कोसते रहें, फायदा नहीं है. माजी से सीखकर हमें आगे बढ़ना है. तीसरी बात, देखिए, जब तक जैसे फरतुल्लाह बाबर कह रहे थे, हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करने की जरूरत है. देखना है उस पे कितना अमल दरामद हुआ, कितना नहीं हुआ. जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, वो कैसे हो सकता है. एक मिसाल के तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है. अब देखिए, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है इस वक्त. आज हमजा शहबाज शरीफ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इंतजामिया से और अपने कैंडिडेट से पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस में, और ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की ओपन वायलेशन है. ओपन वायलेशन. मैं इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करूंगा, इस वायलेशन का चीफ मिनिस्टर पंजाब वायलेट कर रहे हैं. पंजाब में मरियम बीबी के जलसों के लिए सरकारी वसाइल और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है. क्या ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन नहीं है? क्या वो जलसे नून लीग को नहीं करने चाहिए? क्यों इस्लामिया पर इनसार कर रहे हैं? नहीं, ठीक है सर, ऑब्वियसली फिर हम थोड़ा सा मौजू से हट जाते हैं, पर पॉइंट आपका वैलिड है कि इंस्टीट्यूशंस जो भी हों वो अपनी अपने दायराकार से बाहर निकलते हैं और परफॉर्म सही नहीं करते. लेकिन छोटी सी अगेन वही बात कहूंगा कि ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको आपने तैनात किया और जिसके हवाले से अब पीटीआई कहती है
کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے. اگر اس وقت آپ لوگوں کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے. میں فرحت اللہ بابر صاحب کے پاس جاؤں گا. فرحت صاحب, سر آپ نے سنی, شاہ صاحب کی بات بھی سنی, مشاہد صاحب کی بات بھی سنی. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ اب بہت ساری چیزیں آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے, اپنا نقطہ نظر بھی رکھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ جیسی شخصیات ہیں, اعتزاز احسن جیسی شخصیات ہیں آپ کی جماعت کے اندر, وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں. ابھی بھی پالیسی میکرز وہ ہیں جو یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے فوج فارمولے پوچھ رہی ہے. اب رابطے بھی ہو رہے ہیں, آپ کی جو سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ رابطے بھی رہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جب آپ اقتدار میں آنے کے لیے ان کا, جسے آپ کہتے ہیں, سہارا لیں گے, تو پھر آپ ان کو کس طرح کہیں گے کہ بھائی تمہارا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے؟ وہ کہیں گے 2 مہینے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ مل کے کہہ رہے تھے تحریک عدم اعتماد کس طرح لے کے آنی ہے. تو یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کا کردار کتنا اہم ہے؟ دیکھیے جی, جو سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے, اس پہ قریشی صاحب نے بھی, مشاہد صاحب نے بات کی, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ there is a lot much more to be done by the political parties. جن کو اپنے, اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے کبرز میں اسکیلیٹنز نہ ہو تو وہ زیادہ دلیرانہ فیصلے کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا. جس کے کبرڈ میں اسکیلیٹنز ہیں وہ بات نہیں کر سکتا. تو یہ ایک فنڈامنٹل بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں جو پوائنٹ ریز کر رہا ہوں, جس کا آپ کا سوال سے تعلق ہے کہ آگے کیسے بڑھیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں درست بھی ہو جائیں, پھر بھی جو مائنڈ سیٹ ہے ملٹری جنرلز کا, وہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے ٹو کیپچر مور پاور بوتھ پولیٹیکل اینڈ اکنامک. مثلاً آپ کے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ایئر مارشل اصغر خان کیس پہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کون ذمہ دار تھا, اور وہ جنہوں نے پولیٹیکل مینیپولیشن کی ہے. کیا ہم کچھ کر سکے؟ کیا اس ادارے کے اندر یہ ہمت ہوئی کہ ہاں وہ ایکشن لے سکے؟ ابھی نومبر 2017 میں TLP کا دھرنا ہوا, اینڈ وی ہیو سین کہ کیسے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو استعمال کیا گیا ٹو پروجیکٹ اسٹیٹ پاور بیونڈ بارڈرز اینڈ ود ان بارڈرز ٹو مینیپولیٹ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ گورنمنٹس. آپ نے 2013 میں قانون بنایا پارلیمان میں کہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن بینڈ ہو تو وہ ریسلیکٹ نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے مولانا مسعود اظہر کو, دوسروں کو ریسلیکٹ کر دیا, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. تو the point I want to make is that of course political parties must put their house in order, their decision making process must be institutionalized. ایسا نہ ہو کہ صرف پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے وہی فیصلہ کرے, اگر 3/4 میجارٹی سے فیصلہ ہو that must be binding وغیرہ وغیرہ. یہ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن جو دوسرا فریق ہے جو کریپنگ کو ہوا ہے, جب آپ نے 58(2)B کو ختم کر دیا, جب سیاسی جماعتوں نے PCO کو ختم کر دیا 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, تو پھر ایک نیا ڈول ڈالا گیا, اور وہ ڈول یہ ڈالا گیا کہ بیک سیٹ ڈرائیونگ شروع ہو گئی ہے. اسٹیئرنگ پر کوئی اور بیٹھا ہے, بیک سیٹ والا جو ہے وہ وائٹل لیورز کو کنٹرول کر رہا ہے, ایکسیلیٹر اور کلچ کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اس کا خاتمے کے لیے میں جو تجویز دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بات ان سے بھی کریں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں, اور میں فوجی جرنیلوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, اور ساتھ ہی ان کے اوپر پریشر بھی ڈالیں, کیونکہ محض بات چیت سے یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ان پر پریشر ڈالنا پڑے گا, اور وہ پریشر پارلیمان کے ذریعے ہی ڈالا جا سکتا ہے ٹو کوسچن دیم. فار ایگزامپل, آپ نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون پاس کیا ہے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم نے پوچھا کہ جی ہم کو ذرا بتا دو کہ 3 اسٹار 4 اسٹار جنرلز کے پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس کیا ہیں. جواب نہیں ملا. ہم انفارمیشن کمیشن میں گئے, انفارمیشن کمیشن نے کہا ان کو اس کا جواب دے دو, جواب پھر بھی نہیں ملا. تو ہم کو یہ باتیں برملا بار بار اٹھانی چاہیے, so that we put them on the spot and tell them کہ this is what you are doing. آپ آئین سے خلاف ورزی کر رہے ہو. جس طرح مشاہد صاحب نے پہلے کہا کہ آپ کا حل ہی یہی ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کرو, اور اگر وہ پاسداری نہیں کر رہے تو آپ یہ آواز بار بار اٹھاؤ, انفارمیشن کمیشن میں اٹھاؤ, پارلیمان کے اندر اٹھاؤ, ان پر دباؤ ڈالو. جب دباؤ ڈالو گے تو پھر وہ بات چیت میں آپ کے ساتھ شاید کچھ بات وہ سن لے. ادروائز they only know this language کہ ہاں ہم نے نہ تو پیپلز پاور کو سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں, اور نہ وہ آئین کو مانتے ہیں. جس طرح قائد اعظم نے 1948 میں کہا تھا, وہی بات آج بھی چل رہی ہے, اور اب بھی
There is creeping coup has taken place in the country. Driving stage पर कोई vehicle पर कोई और बैठा है, vitals organs किसी और के पास है, और ऐसा vehicle मैं आपको बरबला कहना चाहता हूँ, किसी हद तक तो चल सकता है, अंजाम कार इसका खौफनाक हादसा ही होगा, इसका अंजाम कुछ और नहीं होगा, खौफनाक हादसा ही होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी, और उसके साथ साथ शाह साहब देखें इस वक्त जो व्हीकल के ऊपर ड्राइविंग सीट पे जो बैठे हैं वो कोई एक नहीं है, उसमें फरतुल्लाह बाबर साहब की जमात समेत तमाम बड़ी सियासी जमातें वो बैठी हुई हैं। तो ये जो इन्होंने इस वक्त चार्जशीट रखी है, ये बुनियादी तौर पे अगेन फिर आपकी तमाम सियासी क़यादत इसके अंदर जो है शामिल है उनके साथ। और दूसरी बात, जब आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं उसमें एक जो प्रॉब्लमेटिक आंसर ये आ जाता है कि अक्सर हमें मगरिब से बताया जाता है कि जनाब के सियासी अमल बड़ा जरूरी है, तो फिर उसमें एक बैरूनी वो जो आंसर आता है वो अवामी उसको उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती, उसको आप किस नजर से देखते हैं? और आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे दें कि आपकी नजर में हल क्या है। देखिए, मगरबी दोस्त हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बताते हैं, लेकिन अपने मफादात जब आते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज सेकेंडरी हो जाती हैं, रियल पॉलिटिक सेट्स इन, और वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और डेमोक्रेसी जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर मगरबी दोस्त हमें ह्यूमन राइट्स का दर्स देते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में, फलस्तीन में जिस तरह ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जाता है वहां खामोश हो जाते हैं। यूक्रेन में जो हो रहा है वो गलत है, मैं नहीं कहना सही हो रहा है, लेकिन वहां खामोशी इख्तियार हो जाती है, यहां उसका जिक्र हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये भी हमारे सामने हैं, और हमारी जो अशराफिया है, जो एलीट है, वो वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड है। मैं खुद अपना हिस्सा उसको कहता हूं, वी आर एजुकेटेड इन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। मैं कैम्ब्रिज में था, हम उनके इन्फ्लुएंस में हैं। हमें बैसियत कौम के उनके इन्फ्लुएंस से निकलना चाहिए। कैसे निकले? अपना लिबास शलवार कमीज, अपनी जबान उर्दू, अपनी सोच, मशरकी तहजीब, और वेस्ट के जो अच्छी वैल्यूज हैं, और वेस्ट में बहुत अच्छी वैल्यूज हैं, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, और हमें इस तरह आगे बढ़ना चाहिए कि हम कैसे बढ़े। एक दूसरी बात यह है कि हमें खंदा पेशानी से अपने जज्बात को एक तरफ रखते हुए देखना यह है नेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम देखिए, फरतुल्लाह बाबर जैसे लोग, मुशाहिद हुसैन जैसे लोग, या मैं, हम अपना बड़ा अरसा सियासत में रोल प्ले कर चुके हैं। अब हमारा ज्यादा अरसा रहा नहीं है, अब हमारे बच्चे आगे आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं। अब हमारे पे ये फर्ज आयद होता है, हमें दयानतदारी से मुल्क के मफाद में बात करनी चाहिए, अपनी जमातों में भी करनी चाहिए, मीडिया के सामने भी करनी चाहिए, पार्लियामान में भी करनी चाहिए। पार्लियामान को, अब देखिए, जिस पार्लियामान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज हो, तो ये मैं क्या कहूं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या कहूं मैं। पार्लियामान तो उस दिन मौत मर गया जब पॉकेट यूनियन की तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी पॉकेट का हो, जिसने कल को केयर टेकर सेटअप बनाना है। ये इससे बड़ा मजाक इस पार्लियामान के साथ क्या हो सकता है, जमहूरियत के साथ क्या हो सकता है, जो पूरी कौम देख रही है। ठीक, शाह साहब थैंक यू सो मच। फरतुल्लाह बाबर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, इतनी जल्दी इसका हल नहीं निकल सकता, ना ही कोई डिस्कशन हतमी किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल भी हैं। जिस खित्ते में हम रहते हैं वहां पे भारत जैसा मुल्क भी है, पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी आर्मी भी है, तो हमारी दिफाई जरूरियात भी ऐसी हैं कि वहां आधा मिनट बात कर लूं, आधा मिनट। जी प्लीज 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 सर बोलिए आप। सर आपने बड़ा अच्छा कहा कि इलाकाई सूरत हाल भी ऐसी, और मैं आपके इस टॉपिक ही की तरफ के सिविल मिलिट्री रिलेशन, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा टाइमली आपने डिस्कशन अरेंज की है, और सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट जो है अब ये महज गवर्नेंस का इशू नहीं रहा, ये इतना रासिख हो चुका है कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगर पाकिस्तान की आवाम अपने आप को बिकॉज ऑफ दिस डिस्कनेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्कनेक्ट, अगर पाकिस्तान के अवाम एक कसीर तादाद में डिस्कनेक्ट हो जाए अपनी अफवाज से,
تو یاد رکھیں کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ محض گورننس کا ایشو نہیں ہے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے وساطت سے یہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کو سمجھ لو کہ اب یہ ڈسکنیکٹ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اس لیے اس ڈسکنیکٹ کو فوراً اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈول ڈالنا چاہیے. اور اس لیے میں آئی پی آئی کو آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ اٹ واز ویری ٹائملی. اٹس این ایشو آف نیشنل سیکیورٹی. دا نیشنل سیکیورٹی از ناؤ بینگ انڈرمائنڈ بائی دا گریوٹی آف دا ڈسکنیکٹ بٹوین دا سول اینڈ دا ملٹری. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے سنا, فرت اللہ بابر صاحب کی بات بھی سنی, دیگر جو شرکا تھے مشاہد حسین سید صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے. جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ obviously یہ ڈسکشن اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر بات ہوگی. ہر پارٹی نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم سم ٹائم ذکر کرتے ہیں اندرونی معاملات کا, آخر میں فرت اللہ بابر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ کچھ بیرونی چیزیں بھی ایسی ہیں, کچھ ہمارے علاقائی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو ہی پاکستان آزاد ہوا ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس قسم کی تھریٹس آتی ہیں, اگر ہمیں ریجنل سیکیورٹی کی گارنٹی دے دی جائے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کرے گا, تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مختلف حالات میں ہوتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے ہی آگے لے کے چلنا ہے. اور سیاسی جماعتوں کا کردار میں اس لیے زیادہ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ انسٹیٹیوشن سے ہم ڈائریکٹلی سوال نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جن کو ہم پارلیمان میں لے کے آتے ہیں. اس وجہ سے ان سے ہمارا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ڈائریکٹ کوسچن ہوتا ہے, اور ان کو ہم زیادہ اکاؤنٹیبل بھی سمجھتے ہیں عوام کے سامنے. اینی وے, امید ہے کہ یہ ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہوگی, امید کوشش بھی کریں گے اور امید بھی ہے کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے اہم موضوعوں کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہے گی اور شیئر بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ جی, تھینک یو.